آپ ایک دن میں بھی یہ سلیبس پریپیئر کر سکتے ہیں۔ اور مسئلہ جو بچوں کو پیش آتا ہے کہ لانگ کوشچن کتنی لینتھ کا ہو اور اس کو کیسے لکھا جائے۔ آپ کے پیپر کے مارکس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کنٹینٹ کی کوالٹی پہ، آپ کی رائٹنگ سکلز پہ، آپ کے پیپر کی نیٹنس پہ۔ جو بچے پاس پیپرز کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ان کا ایک ایک شارٹ کوسچن ڈھونڈ کر پریپیئر کرنے، لانگ کوسچن ایک ایک ڈھونڈ کر پریپیئر کرتے ہیں، اس میں آپ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ میں کچھ امپورٹنٹ لانگ کوسچنز کی پکچرز اٹیچ کر رہی ہوں۔ یہ شارٹ کوسچنز آئیں گے کہاں سے، تو چیپٹر نمبر 1 اور 2 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرسٹ ایئر اسلامیات کی۔ اسلامیات کا گیسٹ پیپر آپ سے شیئر کروں گی، ساتھ ہی ساتھ ہم سلیبس پارٹیشن دیکھیں گے اور پیپر پیٹرن کو بھی ڈسکس کریں گے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاسنگ مارکس کے لیے آپ نے کون کون سے چیپٹرز پریپیئر کرنے ہیں، کیونکہ اسلامیات کے اندر میں آپ کو ریکمینڈ ہی نہیں کروں گی کہ آپ پاسنگ مارکس لیں۔ میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ میں سے ہر بچہ، ایون کہ اگر کوئی بلو ایوریج بچہ بھی ہے تو وہ بھی 40+ کی طرف جائے، کیونکہ بہت شارٹ سا سلیبس ہے، 4 چیپٹرز ہیں، ٹوٹل 75 پیجز ہیں، اور ان میں سے بھی زیادہ تر چیپٹرز دیکھ لیں آپ کو آتے ہی ہوں گے۔ فرسٹ چیپٹر ہے بنیادی عقائد، جس کے کچھ سب ٹاپکس دیے ہوئے ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب، اسلامی تشخص۔ سیکنڈ چیپٹر ہے ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔ محبت و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق العباد، معاشرتی ذمہ داریاں۔ چیپٹر نمبر 3 ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، اخوت، مساوات، صبر، استقامت، عفو و درگزر۔ تعارف قرآن میں قرآن پاک کا تعارف، حدیث کا تعارف اور کچھ منتخب آیات اور احادیث دی گئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پہ دیکھ لیں، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب ہمیشہ سے ہر کلاس میں آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں، ارکان اسلام کا ہر کسی کو پتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سلیبس ہے، پیپر پیٹرن کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ گیسٹ پیپر کیا ہے اسلامیات کا فرسٹ ایئر کا۔ اسٹوڈنٹس پیپر میں کوشچن نمبر 2 میں آپ کو ٹوٹل 9 کوشچنز دیے جائیں گے، 6 کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 3 میں 9 کوشچنز ہوں گے، شارٹ کوشچنز ہوں گے یہ دونوں، 6 کو یہاں سے بھی اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کوشچن نمبر 4 آپ کا ہوگا تفصیلی جواب دینا ہوگا۔ کوشچن نمبر 5 میں بھی تفصیلی جواب دینا ہے۔ کوشچن نمبر 6 میں بھی تفصیلی جواب دینا ہے۔ یہ 3 لانگ کوشچنز آئیں گے، ہر ایک کے 8 مارکس ہوں گے، لیکن آپ نے تینوں اٹیمپٹ نہیں کرنے، آپ نے صرف اور صرف 2 اٹیمپٹ کرنے ہیں 3 میں سے۔ اسٹوڈنٹس اگر یہاں پہ دیکھیں کہ شارٹ کوشچنز آئیں گے کہاں سے، تو چیپٹر نمبر 1 اور 2 سے کوشچن نمبر 2، چیپٹر نمبر 3 اور 4 سے کوشچن نمبر 3 بنتا ہے۔ جبکہ اگر ہم کوشچن نمبر 4، 5 اور 6 کو دیکھیں تو کوشچن نمبر 4 آپ کا چیپٹر نمبر 1 سے ہوگا، کوشچن نمبر 5 چیپٹر نمبر 2 سے ہوگا، کوشچن نمبر 6 یا تو 3 سے یا پھر 4 سے ہوگا۔ 100% ایسے ہی ہوگا کہ آپ کو 2 لانگ کوشچنز چیپٹر نمبر 1 اور چیپٹر نمبر 2 میں سے آئیں گے، ایک لانگ کوشچن آپ کو 3 یا 4 میں سے آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بلو ایوریج ہیں اور آپ 40+ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 2 ہر ایک لحاظ سے آنا چاہیے، اس کے لانگ کوشچنز، شارٹ کوشچنز، MCQ سب آنا چاہیے۔ اور اسٹوڈنٹس یہاں سے کون سے امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جن میں سے لانگ کوشچن آتا ہے؟ توحید میں سے لانگ کوشچن آتا ہے، عقیدہ توحید میں سے، عقیدہ رسالت میں سے لانگ کوشچن آتا ہے، ملائکہ میں سے کم آتا ہے، جبکہ آسمانی کتب میں سے بھی لانگ کوشچن آ رہا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، یہاں سے کافی امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ توحید میں شرک اور شرک کی اقسام دی گئی ہیں، کافی امپورٹنٹ لانگ کوشچن ہے۔ میں پاس پیپرز کو اٹیچ کروں گی تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں سے آنے والے لانگ کوشچن تقریباً زیادہ تر یہی ہیں۔ آسمانی کتب کی بات کی جائے تو آسمانی کتب میں قرآن مجید ہے، جس کی خصوصیات پر نوٹ لکھیں گے، لانگ کوشچن آ جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس حقوق العباد، والدین اور اولاد کے حقوق اس میں سے آتا ہے۔
यानी गूगल इबाद में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है और एरकान इस्लाम में से एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ज़कात पर नोट आता है या फिर तमाम एरकान इस्लाम पर नोट लिखने को कहा जाता है। चैप्टर नंबर 4 में अगर देखें, चैप्टर नंबर 4 में जमा और तदवीने कुरान बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जमा और तदवीने कुरान के अदवार बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जमा और तदवीने हदीस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। लेकिन आज से मैंने ये कहा है कि आप पहले दो चैप्टर्स को लाजमी तौर पे प्रिपेयर कर लें, हर एक चीज कर लें। एक्सरसाइजेस में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में 9 से 10 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे प्रिपेयर करें। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी सारे प्रिपेयर करें। यानी स्टूडेंट्स आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 को हर लिहाज से प्रिपेयर करना है ताकि आपको 3 और 4 की तरफ ना जाना पड़े। ये कहा कि हर एक बच्चा 40 प्लस की तरफ जाए और 40 प्लस के लिए भी आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई। फिर आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स चारों चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में 10-10, 12-12 एमसीक्यू हैं, आपने उन तमाम को प्रिपेयर करना है। लेकिन प्रिपरेशन कैसे की जाए? प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स आप एक दिन में भी ये सिलेबस प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप 3-3 घंटे एक दिन में 3 दफा बैठ कर पढ़ते हैं, फर्स्ट डे ड्यूरेशन 7 to 10 AM 7 से 10 मॉर्निंग में पढ़ते हैं, जिसमें आप चैप्टर नंबर 1 को प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर 10 से 12 का ब्रेक और 12 से ऑनवर्ड 3 बजे तक आप क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 2 को प्रिपेयर करते हैं और फिर 3 से ऑनवर्ड 8 बजे तक आप फारिग हैं। 8 से 11 फिर आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेने से आपके काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर आप पहले शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हैं तो आप अलग से टाइम लगाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे और फिर लगाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पे। इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके फिर बचे हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में कवर नहीं होंगे उनको प्रिपेयर करें और फिर एंड में एमसीक्यू की तरफ जाएं। उनके बच्चे पास्ट पेपर्स को लेकर बैठ जाते हैं, उनका एक एक शॉर्ट क्वेश्चन ढूंढ कर प्रिपेयर करने, लॉन्ग क्वेश्चन एक एक ढूंढ कर प्रिपेयर करते हैं। इसमें आप बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, बल्कि यूं कहें कि टाइम वेस्ट करते हैं। आपने उनको प्रिपेयर नहीं करना, बल्कि आपने पहले अपने डिसाइडेड चैप्टर्स को पेरेंट के मुताबिक हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के बाद पास्ट पेपर्स को लेकर ये चेक करना है कि क्या इन चैप्टर्स में से आने वाले क्वेश्चंस मुझे आते हैं या नहीं आते। अगर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो आप वो वाले जो नहीं आते वो प्रिपेयर कर लें, और जो ऑलरेडी आते हैं वो तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के पिक्चर्स मैं यहाँ अटैच कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपका टारगेट कितने मार्क्स का है इस्लामियात के लिए। और इस्लामियात के मार्क्स को मैंने कहा 40 से नीचे ना जाने दें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें से आपको मार्क्स लेने चाहिए। 50 नंबर हैं, 50 में से 50 लेने की कोशिश करें। परसेंटेज को इम्प्रूव करेगा और परसेंटेज हेल्प करेगी फाइनल रिजल्ट को बेहतर करने में। स्टूडेंट्स एक और मसला जो बच्चों को पेश आता है कि लॉन्ग क्वेश्चन कितनी लेंथ का हो और इसको कैसे लिखा जाए। अगर आपकी बुक में क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स दी गई हैं तो आपने हेडिंग्स लाजमी बनानी है, लेकिन अगर आपकी बुक में हेडिंग्स नहीं दी गई किसी क्वेश्चन में तो उसमें आप हेडिंग्स ना भी दें, पैराग्राफ की शक्ल में ही लिख दें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और स्टूडेंट्स जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना है तो आपको पता ही है कि इस्लामियात के पेपर में कुछ अहादीस और कुरानी आयात का हवाला दिया हुआ होता है। आपने वो कुरानी आयात और अहादीस लाजमी अपने क्वेश्चन में ऐड करनी है। अगर आपको अरेबिक नहीं भी याद हो रही तो कम से कम आपने तर्जुमा लाजमी प्रिपेयर करना है। और कोशिश करें कि जब आप कुरानी आयत का या हदीस का हवाला दें लॉन्ग क्वेश्चन लिखते वक्त तो आप उसको बोल्ड पेन से यानी मार्कर से लिखें।
आपने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त 2 पेन इस्तेमाल करने हैं, एक ब्लू पेन और एक ब्लू मार्कर। ब्लू मार्कर की मदद से या हदीस वगैरह लिखें। और स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जितना कंटेंट दिया गया है, मैं रिपीट कर दूं, मैं बुक कह रही हूँ, हेल्पिंग बुक नहीं कह रही। आपकी बुक में जो कंटेंट दिया गया है वही काफी होगा, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी बुक के 2 से 3 पेजेस का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो जब आप लिखेंगे वो 7 से 8 साइड्स का खुद ही बन जाएगा और ये अच्छी लेंथ है। एक लॉन्ग क्वेश्चन की बहुत अच्छी लेंथ है अगर आप इतना लिखाते हैं। और स्टूडेंट्स, इस्लामियत के पेपर के मार्क्स डिपेंड करता है आपके कंटेंट की क्वालिटी पे, आपके राइटिंग स्किल्स पे, आपके पेपर की नीटनेस पे और क्वेश्चंस के अंदर लिखी गई आयात अहादीस के हवाले से। जितना अच्छा कंटेंट आप लिखेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चों के पेपर्स मैंने देखे हैं कि वो पूरी की पूरी शीट्स खत्म कर देते हैं, लेकिन मार्क्स उनके 35 to 40 ही रहते हैं, कि कंटेंट वैसा नहीं होता, उस क्वालिटी का नहीं होता कि जिसका एग्जामिनर को चाहिए। आपने बुक पर लिखी हुई चीजें ही लिखनी कोशिश करें कि अगर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, 45 प्लस में जाना चाहते हैं, तो अपनी वर्डिंग को अवॉइड करके बुक की वर्डिंग लिखें। अगर आप बुक की वर्डिंग नहीं लिखेंगे, अपनी वर्डिंग लिखेंगे, तो फिर आपके मार्क्स स्टूडेंट्स 45 प्लस में नहीं जाएंगे और आपने कोशिश ही 45 प्लस वाली करनी है। स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की पिक्चर्स अटैच कर रही हूँ। यहाँ से आपने देख लेना है कि आपके पास पेपर्स में किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपने अपने दोनों चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के बाद इन लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में सोच लेना है, देख लेना है कि क्या ये आपको आते हैं या नहीं आते। अगर कोई नहीं आता तो उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो वेरी गुड। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इस्लामियत का एक गेस्ट पेपर डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देखा कि कैसे 100% मार्क्स की तरफ आप लोग जा सकते हैं सिलेबस को कम प्रिपेयर करके। मैंने कहा अपने चैप्टर नंबर 1 और 2 100% प्रिपेयर करना है हर बच्चे, और जो 90% 95% वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि थर्ड चैप्टर में भी लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें, ताकि अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आगे पीछे हो भी तो आपको आता हो। स्टूडेंट्स, ये है हमारी आज की वीडियो। आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, एग्जाम्स के लिए बहुत सारी दुआएं करें, अपने पेरेंट्स के लिए दुआएं करें, अपने लिए दुआएं करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआएं करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।